ملتان میں ادویات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ میڈیسن کی بڑھتی قیمتوں سے شہری اور دکاندار دونوں پریشان ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران میڈیسن کی قیمتوں میں 18 سے 20% تک اضافہ ہوا۔ ملتان میں مہنگائی بڑھنے کا سلسلہ نہ تھم سکا، میڈیسن کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں۔ ادویات کی بڑھتی قیمتوں سے شہری اور دکاندار دونوں پریشان ہیں۔ ایک ہفتے میں ادویات کی قیمتیں 18 سے 20% تک بڑھ گئیں۔ مارکیٹ میں کچھ ادویات بلیک میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ شوگر والی دوا کی ڈبی 300 سے بڑھ کر 370 روپے، بلڈ پریشر والی دوا کی ڈبی 250 سے مہنگی ہو کر 320 روپے کی ہو گئی۔ دودھ کے ڈبوں کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ بتائے قیمتیں بڑی ہیں، نہیں تو ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ پہلے بتایا جاتا تھا کمپنیوں کی طرف سے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف سے کہ ہم 5% یا 7% ریٹ بڑھا رہے ہیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ خاموشی سے انہوں نے ریٹ بڑھائے ہیں اور ریٹ بھی تقریباً 25 اور 30% زیادہ بڑھائے ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھنے سے ان کی سیل میں بھی کمی ہوئی ہے۔ میڈیسن کمپنیاں آئے روز قیمتیں بڑھا رہی ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ لوگوں کے لیے پہلے روٹی کھانا مشکل تھا نا، اب جو لوگ 15 دن کی یا مہینے کی میڈیسن لیتے تھے نا، اب وہ 1 دن کی یا 2 دن کی بامشکل میڈیسن لیتے ہیں۔ وہ بھی کوئی قرضے سے پیسے اٹھا کے لے رہا ہے، کوئی کچھ، کیونکہ ہم سارا دن یہیں پہ شاپ پہ ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، یقین کرو ایسے لوگ ہوتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں۔ شہریوں دکانداروں نے حکومت سے ادویات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ چشتیہ میں جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ۔ حکومت کی طرف سے ادویات پر 18% GST لگا دیا گیا، جو عام عوام کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا۔ حکومت نے مہنگائی سے تنگ عوام پر ایک اور بوجھ ڈال دیا۔ جان بچانے والی ادویات پر 18% GST عائد۔ میڈیسن کمپنیوں نے ادویات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ ادویات پر ٹیکس براہ راست عام عوام کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا۔ مہنگائی تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے، لیکن اب جو GST ٹیکس اور لگا دیا گیا ہے، میڈیسن لینے تو پہلے ہی مشکل ہو چکی تھی، اب اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ اب غریب عوام یہاں تو پھر کھانا پورا کر رہے یا میڈیسن پوری کر لے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک تو پہلے ہی مہنگائی عروج پر ہے، دوسرا ادویات بھی مہنگی ہو گئی ہیں۔ غریب عوام کھانا کھائیں یا ادویات پوری کریں۔ شوگر کی گولی سٹیمیٹل ٹیبلٹ کا پیکٹ 390 روپے سے بڑھ کر 900 روپے کا ہو گیا۔ پیناڈول کے پیکٹ پر 7 روپے کا اضافہ کر دیا گیا اور کھانسی کے سیرپ ٹوریکس کی ایک بوتل پر 12 روپے کا اضافہ ہوا۔ مہنگائی کے اس دور میں عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے۔ ایسے میں بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ادویات خریدنا ان کے بس سے باہر ہے۔ کیمرامین محمد عبید اللہ کے ساتھ زاہد حسین ہاشمی، روہی، چشتیاں۔ ملتان انتظامیہ کو سیاحت کے عالمی دن پر بھی ہوش نہ آیا۔ انتظامیہ کی غفلت کے باعث شہر کا تاریخی ورثہ کوڑا کرکٹ میں تبدیل ہو گیا۔ پاک گیٹ تا حرم گیٹ تاریخی فصیل کے ساتھ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے۔ ملتان ایک تاریخی شہر ہے، لیکن یہاں پر صفائی ستھرائی کی اگر ہم انتظامات کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ ناقص ہیں۔ یہاں جو سیاحت کے لیے تاریخی عمارتیں، تاریخی دیواریں، تاریخی دروازے مشہور ہیں، وہ گندگی کی نظر ہونے لگے۔ ملتان شہر کا تاریخی ورثہ کوڑا کرکٹ کے باعث تباہی کا شکار ہونے لگا۔ پاک گیٹ تا حرم گیٹ تاریخی فصیل کے ساتھ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے۔ صفائی عملے نے تاریخی فصیل کے ساتھ ہی کوڑا کرکٹ کا ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تعفن اور گندگی کے باعث اذیت سے دوچار ہیں، یہاں سے گزرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ 1 مہینے سے ہم یہاں پہ پریشان ہیں، تنگ ہے، بہت زیادہ گندگی ہے، پانی کھڑا ہوا ہے۔ واسطے کو کمپلین کر چکے ہیں، حکومت کو بار بار درخواست دے چکے ہیں، بل تو آ جاتے ہیں لیکن عملہ ابھی تک کوئی نہیں ہے، نہ کوئی صفائی کا، نہ گٹر صاف کرتے ہیں، نہ صفائی کرتے ہیں۔ سیاحت کے فروغ کی غرض سے 1 سال پہلے اس قدیم فصیل کو تزئین و آرائش کر کے بحال کیا گیا تھا۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث فصیل کے ساتھ رکھے گئے سجاوٹی پلانٹرز خستہ حال ہو گئے ہیں۔ بچوں کے لیے نصب جھولے زنگ آلود ہو گئے، جبکہ فصیل کے ارد گرد کچرے کے ڈھیروں کی وجہ سے سیاحوں نے ادھر کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح جو ہے نا کیا نام ہے، قلعہ ہو گیا ہے، اندرون کا شہر ہو گیا ہے، پرانی بلڈنگیں ہیں، کافی قدیمی جو ہے نا کیا نام ہے شہر ہے، لیکن وہ لوگ کیا دیکھیں جب کوئی سہولت ہی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی نظام ہی نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے نا کیا نام ہے لوگوں کا یہاں پہ آنا جانا بہت کم ہی ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کو صاف کیا جائے اور اس قدیم فصیل پر صاف ستھرائی کے انتظامات کو یقینی بنا کر سیاحت کو فروغ دیا جائے۔ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے 1 سال قبل اس تاریخی فصیل کو تزئین و آرائش کے بعد بحال کیا گیا تھا، مگر ناقص انتظامات ہونے کے باعث سیاحوں نے اس تاریخی جگہ کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کیمرامین کامران حسن کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔
मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आज सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्तान में मजहबी सियाहत को फरोग हासिल है। दुनिया भर से अफराद मजहबी सियाहत के लिए मुल्तान आते हैं। मुल्तान तारीखी और सकाफती एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल शहर है। मुल्तान में मजहबी सियाहों को फरोग हासिल है। यहाँ मजहबी सियाहत के लिए दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, दरबार शाह शम्स और शाहरुख आलम दरबार के साथ साथ दूसरे मुतादिद मज़ारात भी मौजूद हैं। दरबार उत्ते कोई सलाम करना ही हर साल आते रहने, सारी फैमिली आती रहती है और टुरते फिरते हैं ते अपना दरबार दे चक्कर ला दे वाल वापस चले आए। मुल्तान की तारीख 5000 साल पुरानी है। दुनिया भर से सियाह मजहबी सियाहत के लिए मुल्तान आते हैं। हम मजहबी सियाहत के लिए यहाँ पर आए हैं, कराची वाले शहर से हम यहाँ पर आए हैं स्पेशल। तो वाकई तो और शहरों में भी, इस्लामाबाद में इधर उधर सारे पहाड़ वगैरह बहुत हैं, लेकिन मुल्तान को हमने मजहबी सियाहत के सिलसिले से हमने वो करना चाहिए दरबारों वगैरह पे, जैसे शाहरुख आलम, शाह शम्स हो गई, किले हो गए। सियाहत के लिए आए शहरियों का कहना था कि हम अपनी फैमिली के हमरा हर साल आते हैं। मुल्तान कदीमी शहर है, दूसरे शहरों से सिर्फ मजहबी सियाहत के लिए यहाँ आते हैं। सियाहत के आलमी दिन के मौके पर दुनिया भर के जो शहरी हैं वो मजहबी सियाहत को ज्यादा फरोग देते हैं। कैमरामैन फहीम शाह के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान जिले इंतजामिया की गफलत या मुबैना ना हिली। शहर में मुख्तलिफ सड़कों पर स्टॉप्स तो बना दिए गए, मगर उन स्टॉप्स पर ताहाल इंतजार गाहें नहीं बनवाई जा सकी, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्तान जिलाई इंतजामिया की लापरवाही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले शहरी सड़कों पर खड़े होने पर मजबूर। शहर में मुख्तलिफ सड़कों पर बने स्टॉप्स पर ताहाल इंतजार गाहें ना बनवाई जा सकी। सफर के लिए रिक्शा, स्पीडो और दीगर ट्रांसपोर्ट का इंतजार करते हुए शहरियों के लिए बैठने की कोई जगह नहीं। तुलबा, काम पर जाने वाली खवातीन और मजदूर पेशा अफराद सड़क पर घंटों खड़े होकर सवारी का इंतजार करते नजर आते हैं। मसाइल ये हैं कि यहाँ के हमारे स्टूडेंट्स हैं या लेडीज आती हैं, यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है, यहाँ बैठने की जगह नहीं है, स्टाफ होना चाहिए, यहाँ शेड लगना चाहिए ताकि ये स्टूडेंट लड़कियाँ हैं या लेडीज एक्सरसाइज कचहरी में आती हैं, परेशान होती हैं, धूप में खड़ी होती हैं। शहरियों का कहना था कि गुंजान आबाद, बोसन रोड, निश्ता रोड, पुराना शोजाबाद रोड, विहाड़ी रोड, मासूम शाह रोड, रंगीलपुर रोड, कासिम बेला रोड समेत शहर में कहीं भी इंतजार गाहें ना हैं। दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का कहना है कि शहर में सबसे पहले बोसन रोड पर इंतजार गाहें बनाई जाएंगी, उसके लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। हमने 3 हॉटस्पॉट्स फिलहाल फर्स्ट फेज में आइडेंटिफाई किए हुए हैं। एक हमारा एमरसन कॉलेज के साथ है, एक 9 नंबर चुंगी पे है और एक चुंगी से ही तकरीबन 200 मीटर आगे एक तीसरा स्पॉट है। यहाँ पे हम प्राइवेट वेंडर्स और प्राइवेट फंडिंग से लेके गवर्नमेंट, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया उनके साथ कोलैबोरेट कर रही है और यहाँ पे हम लोग लोकल मटेरियल से, लोकली सोर्स मटेरियल से हम लोग बना रहे हैं बस स्टॉप्स, रेस्ट स्टॉप्स। शहरियों को गर्म और ठंडे मौसम, बारिशों और आंधियों में सड़क पर खड़े होकर ट्रांसपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है। शहरियों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरी आरटीए से फौरी इंतजार गाहें बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। तरंडा मोहम्मद पनाह में तलबा मौत के मुंह से गुजर कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल कच्ची मोहम्मद के सामने नहर पर आरजी खजूर का पुल तलबा और इलाका मकीनों की वाहिद गुजरगाह है। तलबा ने नहर का पुल पुख्ता करने का मुतालबा कर दिया। तरंडा मोहम्मद पनाह के शहरी सफरी सहूलियात से महरूम। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल कच्ची मोहम्मद खां के तलबा को मौत के मुंह से गुजरकर स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल के सामने वाक़ई बहावलवा नहर पर बना खजूर का पुल इलाका मकीनों की वाहिद गुजरगाह है। तलबा कहते हैं ये पुल हमारी वाहिद गुजरगाह है, स्कूल आते जाते वक्त इसी पुल से गुजरना पड़ता है। पुल से गुजरते हुए डर लगता है कि कहीं नहर में न गिर जाए। ज्यादा परेशानी है जी, मिले हम दादार के हम बेचना डैपू, निके निके नाल बालन बेचना डैपू। नहर पर पुल न होने की वजह से मकीनों ने खजूर के दरख्त को आरजी पुल में तब्दील कर दिया। पुल के नीचे नहर 12 फीट गहरी है। इलाका मकीनों का कहना है कि अक्सर औकात बच्चे नहर में गिर जाते हैं। फौरी तौर पर पुख्ता पुल बनाया जाए वरना किसी वक्त भी कोई बड़ा सानिया रूनुमा हो सकता है। असां वास्ते बहुत परेशानी है, साडे बाल ही खोद दे तू आमदन आवन वने वास्ते रास्ता बहुत खराब है। असां इतना सामने खजी खड़ी, खजी काट के इतना सटे थे, पिछली बेर खजी टूट गई, बाल एक वेच नहर में पिया। उनके बाद इतना टाली खड़ी, टाली कापते इतना सटे थे। मेहरबानी करके एक खजी तुम लवा दो, तारी गुजारिश हो से इन वास्ते बाल बहुत परेशान थी। इलाका मकीनों और तलबा ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर रहीम मियां खान से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर नहर पर पुख्ता पुल तमीर करवाया जाए। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। मुल्तान में गुलशन शुजात के मकीन पीने के साफ पानी को तरस गए। यूनियन काउंसिल नंबर 77 का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। इलाका मकीन पीने के साफ पानी के लिए ख्वार होने लगे।
शहर औलिया में पीने के साफ पानी का मसला हल न हो सका। शहर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं। मुजफ्फराबाद के इलाका गुलशन शुजात का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फ़ाल। इलाका मकीनों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना। इलाका मकीन कहते हैं जेरे जमीन आलूदा पानी नहीं पी सकते, दूर दराज इलाकों से साफ पानी लाना पड़ता है। तकरीबन एक अरसा हो गया है, लाखों रुपए लगाया गवर्नमेंट ने, कोई हाल नहीं है इसका, और कई दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आप खुद देखें इसका हाल क्या हुआ है, और पानी के साफ पानी के लिए अवाम दर बदर की ठोकरें खाती हैं। के जॉनसन इसको बहाल किया जाए और तमाम इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ताकि हमारे महल्ले के जो अफराद हैं या इलाके के अफराद हैं वो कॉलोनी मिल के अंदर से वो कभी भरने देते हैं, कभी गेट बंद कर देते हैं, कभी पाबंदी लगा। इलाका मकीनों का कहना था कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की देखभाल न होने से मशीनरी और इमारत खराब हो रही है। मुतअद्दिद बार आला हुकाम को शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इंतजामिया कुछ सुनती नहीं, हमारी कुछ भी नहीं सुनती, जो मर्जी कर लो इंतजामिया कहती है कर देंगे, आता कोई भी नहीं है। इधर आते हैं तो जमींदार लेके आते हैं, गलियों में झाड़ू मरवाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मेन चीज है हमारा पानी, वो हमें नहीं मिल रहा। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। पंजाब ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। तौंसा शरीफ की बस्ती डगरवाली के बॉयज और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल्स में असातिज़ा कम पड़ गए, जबकि तलबा और तालिबात की तादाद ज्यादा है। तौसा शरीफ में महकमा स्कूल एजुकेशन की गफलत। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल डगरवाली में 200 तालिबात के लिए सिर्फ एक टीचर है, जबकि बॉयज प्राइमरी स्कूल डगरवाली में 150 के करीब तलबा ज़ेरे तालीम हैं, जहां सिर्फ 2 टीचर तैनात हैं। असातिज़ा की कमी के बायस तलबा तालिबात की तालीम मुतासिर हो रही है। बाज़ औक़ात तो तलबा बगैर पढ़े ही घर वापस आते हैं। स्कूल में सैकड़ों की तादाद बच्चियां पढ़ रही हैं और एक ही हेड मास्टर साहिबा हैं, और बाकी टीचर अपनी हाजिरी सर अंजाम नहीं दे पा रही। ये स्कूल की तमीर जो है 1957 से हुई थी, अब तक ना इसकी अपग्रेडेशन हुई है, वही प्राइमरी स्कूल खड़ा हुआ है, ना इसको मिडिल किया गया, ना इसको मैट्रिक किया गया है। हम ये हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि यहाँ का अमला फिलफौर अपनी वो ड्यूटियाँ सारी अंजाम दें। स्कूल में स्टाफ और सहूलियात की कमी पर तलबा के वालिदैन ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्टाफ की कमी के बायस बच्चों की तालीम के लिए भी परेशान हैं। प्राइमरी स्कूल गर्ल्स जराए इनके सामने खड़े थे, सारे बच्चे ने जराए तादाद बहुत ढेर ज्यादा है। उस्ताद सिर्फ हिक है, बिया गैर हाजिर है, कोई तबादला करवा गए, जहरा इशू भी है, लिहाजा इनको पूरा किया वजे। असा हुकूमत पंजाब का मुतालबा करने हैं। बस्ती डगरवाली 10,000 नफूस पर मुश्तमिल है। तालीमी सहूलियात न होने के बायस गरीब लोग नकल मकानी बारे सोच रहे हैं। इलाका वकीलों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और महकमा तालीम के हुकाम से असातिज़ा की कमी पूरी करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, रोहित, तौसा शरीफ। मुल्तान में ACCA की जानिब से कॉरपोरेट कॉन्फ्रेंस 2024 का इनेकाद। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मियां राशिद इकबाल का खिताब, आइए आपको भी सुनवाते हैं। डोमेस्टिक यूजर से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट तक कोई भी पे नहीं कर सकता। 80 रुपए का यूनिट कोई भी पे नहीं कर सकता। सारे इलाके में इर्द गिर्द के ममालिक में 6 सेंट फी यूनिट, हमारे मुल्क में 16.5 सेंट फी यूनिट। सारे इर्द गिर्द के ममालिक में कैपेसिटी चार्जेस 8 रुपए फी यूनिट, हमारे मुल्क में 24 रुपए फी यूनिट। आधी से ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई, आपके सामने है, और बाकी आधी जो है वो रिड्यूस्ड कैपेसिटी पे चल रही और सिसक रही है, पता नहीं किस वक्त वो भी बंद हो जाएगी। तो ऐसे हालात में डेवलपमेंट का जिक्र करना या डेवलपमेंट पे बात करना बहुत ही मुश्किल है। अब हम शोर मचाए खड़े हैं कि IMF के साथ मुआहदा हो गया तो ये तो बहुत ही अच्छा काम हो गया, अगले 4-5 साल अब हमें इसी तरह और अयाशियां करने का मौका मिल जाएगा। $7 बिलियन आ गए हैं, बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लेंगे, वर्ल्ड बैंक से ले लेंगे, अपने दोस्तों से उधार मजीद पकड़ लेंगे, साल का फ्यूल। अब आपको बताएं, बहावलपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सालाना जनरल मीटिंग। चैम्बर के नौ मुंतखब सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर ने हल्फ उठाया।
इलेक्शंस में नौमुंतखब एसोसिएट और कॉरपोरेट क्लास मेंबरान ने भी हलफ उठाया। आइए आपको लिए चलते हैं। अरकान जनरल बॉडी को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और अपनी जानों से बावलपुर चैम्बर की हालिया इंतखाबात में मुनतखब होकर आने वाले अरकान एग्जीक्यूटिव कमेटी नौमुंतखब आला ओहदेदारान को भी दिल की खलूस गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो हूँ कि जो जिम्मेदारी उन तमाम मुंतखब ओहदेदारान पर ऐद की गई है वो अपनी इसे खुशरूबी के साथ पूरा कर सकें। मैं अल्लाह तबारक तआला के इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि बावलपुर चैम्बर के हालिया इंतखाबात में चैम्बर के एसोसिएट वोटर अरकान ने इत्तेहाद ग्रुप पर जिस इत्मीनान का इजहार किया, ये हमारी बेहतरीन कारकर्दगी का इत्मीनान है और इत्मीनान के ऊपर इजहार किया गया है। और ये बात हमारे लिए इत्मीनान बाइस है कि मैं अपना 2 साल दौरे सदार पूरा करने के बाद अपने ओहदा सदार से सबदोश हो रहा हूँ। मेरे साथ जनाब हनीफ अहमद साहब सीनियर नायब सदर, जनाब अदील खालिद साहब बतौर नायब सदर भी अपने ओहदों से सबदोश हो रहे हैं। 2 साल ओहदा सदारत में मैंने पूरे अज़म के साथ अपनी तमाम जिम्मेदारियों को आसान तरीके से पूरा करने की कोशिश की। अरकान चैम्बर के मसाइल के हल के लिए